ہر روز ایک سچی نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستوں، سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے کہ ملک سیطان پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ سلطان تھا۔ بادشاہ سلطان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ نوفل تھا۔ شہزادہ نوفل بے حد نیک، رحم دل اور بہادر نوجوان تھا۔ اس شہزادے کو دوسرے شہزادے کی طرح سیر و تفریح اور شکار وغیرہ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ عموماً اپنے باپ کے ساتھ دربار میں جاتا تھا اور درباری معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ شہزادہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ درباری بھی بے حد خوش تھے اور انہیں یقین تھا کہ بادشاہ کے بعد شہزادہ نوفل صحیح جنگجو ثابت ہوگا۔ ایک روز جب معمول کے مطابق بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ دربار میں ایک بڑھیا داخل ہوئی۔ بڑھیا کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دہائی ہے بادشاہ سلامت، دہائی! بڑھیا نے دربار میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بزرگ خاتون، کس بات کی دہائی دے رہی ہو اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت نے حیرت سے اس بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑھیا شکل سے کسی اچھے خاندان کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا لباس بے حد قیمتی تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شہزادہ، وزیر اعظم اور تمام درباری حیرت بھری نظروں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہی مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بوڑھی عورت نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ ظلم اور میرے ملک میں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بزرگ خاتون؟ میرے ملک میں تو ہر طرف امن و امان کا راز ہے، لوگ خوشحال ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اس ملک میں عرصہ دراز سے کسی کی چوری تک نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ میری ریاست میں ظلم ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا ہے آپ پر ظلم اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ملک تران کی ملکہ کی بہن شاہتاج ہوں بادشاہ سلامت۔ ملک سیطان میں میرے چچا رہتے ہیں جن کا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ ملکہ اور میں یہاں آنا چاہتی تھی، ملکہ عالیہ چند مصروفات کی وجہ سے نہ آ سکی، اس لیے میں اپنے نوجوان کے ساتھ یہاں آ گئی۔ مگر میں جیسے ہی آپ کے ملک کے سرحد میں داخل ہوئی، اچانک پہاڑیوں کے پیچھے سے بے شمار سپاہی نکلے اور انہوں نے ہمارے قافلے کو روک لیا۔ ان سپاہیوں نے ہمارے قافلہ روک کر اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ان سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف قافلے کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا بلکہ ہمارا سارا مال و ثواب بھی لوٹ لے گئے اور وہ میری بیٹی گلرخ کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی بے حد کوشش کی مگر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ان سب سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ انہوں نے دور تک میرا پیچھا کیا مگر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے میں دور نکل گئی۔ کب انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے روتے روتے اپنا سارا حال سنا دیا۔ ناممکن، قطعی ناممکن! ہمارے سرد سپاہی ایسے گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتے۔ قافلے پہ حملہ کرنا اور انہیں لوٹنا؟ نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے ملک کے سپاہی ہو ہی نہیں سکتے، بادشاہ سلامت نے حیرت اور غصے سے کہا۔ بادشاہ سلامت، وہ سپاہی ہی تھے، انہوں نے سپاہی جیسے ہی لباس پہن رکھے تھے۔ بوڑھی عورت نے بادشاہ کو جواب دیا۔ وزیر اعظم، ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے سپاہی دوسرے ملکوں سے آنے والے قافلے کو کب سے اس طرح لوٹنے لگے اور کیوں؟ نہیں بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے سپاہی کبھی ایسے گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ ان خاتون کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں دوسرے ملک سے آنے والے قافلوں کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے اور سرحدی محافظ اس قافلے کو اپنی نگرانی میں شہر کے بڑے دروازے تک چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ کسی قافلے پر حملہ کر سکیں اور انہیں لوٹ لیں۔ وزیر اعظم نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ غصہ نہ کریں بزرگ خاتون، مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ تھے؟ شہزادے نے بزرگ عورت سے مخاطب ہو کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، بزرگ خاتون نے کہا۔ انہوں نے سرخ رنگ کے قمیض اور نیلے پاجامے پہن رکھے تھے، ان کے سینے پر ضرب اختر تھے اور ان کے سروں پر نوک والی فولادی ٹوپیاں تھیں۔ ہم جیسے پہاڑی درے سے گزر کر دوسری طرف آئے تو اچانک ہی چٹانوں اور پہاڑیوں کے بیچ سے وہ نکل آئے۔ ان کی تعداد 200 سے بھی کم تھی۔ شہزادہ حضور، میرے قافلے میں 20 افراد تھے، میں اور میرے بیٹے کے ساتھ۔ ہمیں چونکہ یہاں کئی روز رہنا تھا اس لیے ہم اپنے ساتھ بہت سا سامان لائے تھے، بزرگ خاتون نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، سرحدی سپاہی نے آخر اتنے چھوٹے سے قافلے پر حملہ کیوں کیا؟
हमारे मुल्क में तो दूर दराज से बेहद बड़े बड़े काफ़िले आते हैं, इनमें आम काफ़िले भी होते हैं और तजारती भी। अगर उन्हें किसी काफ़िले को लूटना होता तो किसी तजारती काफ़िले को लूटते। आपके इतने छोटे से काफ़िले को लूट कर इन्हें क्या हो सकता है। बहरहाल आप तसल्ली रखें, आप हमारे मेहमान हैं। अगर आपके काफ़िले को हमारे सरहदी मुहाफ़िज़ ने लूटा है तो यकीन रखें हम उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। आपका तमाम माल आपको वापस मिल जाएगा। मुझे माल व असबाब की परवाह नहीं, मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र है। हाँ, आपकी बेटी भी आपको वापस मिल जाएगी। बादशाह सलाम ने पहले बुजुर्ग खातून और फिर वज़ीर से कहा। वज़ीर बोला, मैं तहकीक करता हूँ। मैं चूँकि अकेला जाऊँगा इसलिए वो मुझे देखकर नहीं घबराएंगे और ना बुजुर्ग खातून की बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं उनसे जाकर बात करूँगा, उन्होंने ये सब क्यों किया। शहज़ादा हुज़ूर, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं इन 200 सिपाहियों से अकेला लड़ सकता हूँ। शहज़ादा ने जोश भरे लहजे में कहा। फिर भी बेटा, अकेले मत जाओ, हो सकता है सरहदी सिपाही बगावत पर उतर आए हों। जब कोई इंसान बगावत पर उतर आए तो उसे अपने पराये की भी तमीज़ नहीं रहती। तुम अपने साथ कम से कम 2-4 मुहाफ़िज़ ज़रूर ले जाओ। नहीं अब्बाजान, मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। अगर सिपाही वाकई ही बागी हो गए हैं तो पहले मैं इनके बागी होने की वजह जानने की कोशिश करूँगा, उन्हें राह रास्त पर लाऊँगा। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर मैं उनकी बगावत को कुचल दूँगा। तुम जो मर्ज़ी करो शहज़ादे, मगर इतना याद रखना, मुझे मेरी बेटी ज़िंदा सलामत चाहिए। गुलरुख मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। बुजुर्ग खातून ने शहज़ादे से कहा। आप बेफ़िक्र रहें बुजुर्ग खातून, आपकी बेटी आपको ज़िंदा सलामत मिल जाएगी। आप बस इसके लिए मेरे हक़ में दुआ करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, अगर अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ माल में रखे। बुजुर्ग खातून ने दुआएं देते हुए कहा। शहज़ादे ने बादशाह सलामत से इजाज़त ली और फिर वो दरबार से निकलता चला गया। शहज़ादा नौफिल ने अस्तबल से अपना पसंदीदा घोड़ा निकाला और फिर उस पर सवार होकर सदी इलाके की तरफ रवाना हो गया। शहर के बड़े दरवाजे से निकलकर उसने घोड़े को खुले मैदान पर सर दौड़ाना शुरू कर दिया। तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाते वो शुमाली पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। इन पहाड़ों में एक बहुत बड़ा कतला था जिसे गुजरने के बाद मुल्क सितान के शरत शुरू हो जाती थी। सरहदी मुहाफ़िज़ों ने इस दर्रा के इर्द गिर्द पड़ा उठा रखा था ताकि हर आने जाने वाले पर नज़र रख सके। दर्रे से कुछ फासले पर इन्होंने अपने रिहाज़गाह में खैमे डाल रखे थे। शहज़ादा घोड़ा दौड़ाते हुए इस खैमे की तरफ बढ़ रहा था। वह हैरान था क्योंकि उसे वहाँ खैमे तो दिखाई दे रहे थे लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। उसे सरहदी मुहाफ़िज़ ना ही खैमों के पास नज़र आए ना ही दर्रे के पास। शहज़ादा घोड़ा दौड़ाते हुए खैमे के करीब आ गया और फिर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ मुहाफ़िज़ तो मुहाफ़िज़, उनके घोड़े भी नहीं थे। सारे खैमे खाली थे। अलबत्ता खैमों में वहाँ पर मुहाफ़िज़ों के इस्तेमाल का सामान और उनके बिस्तर पड़े हुए थे। ये क्या, ये सब के सब कहाँ गायब हो गए। शहज़ादे ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने घोड़े से उतरकर एक खेमे को देखा मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। खाली खेमों को देखकर शहज़ादा घोड़े पर सवार हुआ तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने इधर उधर देखा मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। आवाज़ इसी लड़की की थी। कौन है ये, कौन बोला? शहज़ादे ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे शहज़ादी के सामने झमाका सा हुआ और अचानक उसके सामने रंग बिरंगे परों वाली एक खूबसूरत तितली नमूदार हो गई। तितली इतने बड़े बड़े पर फैलाए हवा में उड़ रही थी। शहज़ादा नौफिल गौर से जब इस तितली को देखा तो उसकी आंखों में हैरत से भर आई क्योंकि जो उसे तितली समझ रहा था वो आम तितली नहीं थी बल्कि एक छोटी सी तितली परी थी। तितली परी ने सुनहरे रंग का निहायत ही खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके सर पर हीरो का एक ताज भी था। तुम तितली हो? शहज़ादे ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तितली हूँ, तितली परी। तितली परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तितली हूँ, तितली परी। तितली परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तितली परी, बहुत खूबसूरत नाम है। तुम्हारा क्या नाम है? परी ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं मुल्क सिस्तान का शहज़ादा हूँ, शहज़ादा नौफिल। तुम कहाँ से आई हो? शहज़ादे ने पूछा। मैं परी हूँ और परिस्तान में रहती हूँ। मैं परिस्तान की एक रियासत फूल नगर की शहज़ादी हूँ। मुझे इंसानी दुनिया के देखने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तितली परी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम्हारा कद तो बेहद छोटा है। देखने में तुम तो बिल्कुल तितली जैसी मालूम होती हो, जबकि मैंने सुना था
की परियां कद काट के इंसानों जैसी होती है। परिस्तान में बेशुमार रियासतें हैं, वहाँ जिन्नात की बहुत सी आबादियाँ हैं, वहाँ बड़े कद वाली परियां भी होती है, बेहद लंबी, हम जैसी छोटी तितलियाँ जैसी भी है। तुम कहाँ जा रही हो? शहजादे ने पूछा। बताया तो है, मैं इंसानी दुनिया में जा रही थी। मुझे मालूम हुआ था कि मुल्क सितान फूलों का मुल्क है। वहाँ रंग बिरंगी और खूबसूरत खूबसूरत फूल खिलते हैं जो सारा साल भाव दिखाते रहते हैं। मैं इस फूलों के देश में जा रही थी। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे रास्ते में ही फूलों के देश का शहजादा मिल गया। अब मैं फूलों के देश में खूब अच्छी तरह सैर तफरीह कर सकूंगी। परी ने कहा तो शहजादा मुस्कुरा गया। खूबसूरत शहजादी, मैं तुम्हें अपने मुल्क ले जाकर खूब शेर कराऊंगा। मेरा मुल्क वाकई में फूलों का देश है, उसमें हर रंग के फूल खिलते हैं। तो चलो दिखाओ मुझे अपने फूलों का देश। ज़रा रुको नन्ही पड़ी, मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया था, अगर उसे पूरा कर लूँ तो फिर चलता हूँ। अरे हाँ, मैं काफ़ी देर से तुम्हें इधर उधर जाते देख रही थी, तुम परेशान भी हो। क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तितली परी ने शहजादे से कहा। तो शहजादे ने सारी बात उसे बता दी। अच्छा तो ये बात है, हाँ मैं हैरान हूँ कि आखिर सब के सब सर्दी मुहाफिज कहाँ गायब हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ज़मीन ने निगल लिया हो या आसमान ने उठा लिया हो। इनमें से किसी एक का भी निशान मुझे नहीं मिला। मैंने उन्हें हर जगह देख लिया। शहजादे नौफिल ने तितली परी से कहा। तुम कहो तो मैं मालूम करूं वो सब कहाँ है और यहाँ क्या हुआ था। तुम कैसे मालूम करोगी? शहजादे ने हैरान होकर उससे पूछा। मैं तितली परी हूँ शहजादे, मेरे पास बेशुमार सलाहियतें हैं, मैं इनके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तितली परी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या हुआ था यहाँ, और हमारे मुहाफिज कहाँ गायब हो गए। अभी बताती हूँ। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक इसके गिर्द चमकदार सितारे नमूदार हुए। वो सितारे इसके इर्द गिर्द नाचने लगे। शहजादा हैरत भरी नज़रों से उन्हें नाचते हुए देख रहा था, जिसकी रोशनी में तितली परी बहुत ज़्यादा हसीन नज़र आने लगी। तुम वाकई तितली परी की हसीन शहजादी हो, शहजादे ने उसके हुस्न की तारीफ़ करते हुए कहा। तितली परी काफ़ी देर तक किसी तरह आंखें बंद किए हुए हवा में कुछ करती रही। फिर उसने एकदम अपनी आंखें खोल दी। जैसे इसने अपनी आंखें खोली, उसके गिर्द नाचते हुए रंग बिरंगे सितारे गायब हो गए। मैंने मालूम कर लिया शहजादे, सब कुछ मालूम कर लिया। परी के लहजे में बेपनाह तशवीश थी। क्या मालूम किया है? तुम इस कदर परेशान क्यों हो गई हो? ये सब चाकोस उस जादूगर ने किया है शहजादे, तितली परी ने जैसे खोए खोए लहजे में कहा। चाकोस जादूगर? हाँ, चाकोस जादूगर इंतहाई जालिम, बेरहम और शैतान सिफर जादूगर है, जो इंसानों पर बेपनाह जुल्म के साथ साथ दूसरे मखलूक पर अपनी ताकत का रोम जमाने के लिए उस पर जुल्म करते रहता है। इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह हलाक करना उसका शौक़ है। वो इंसानों को हलाक करके उनका दिल निकाल कर खा जाता है, तितली परी ने शहजादे को बताया। अच्छा, इस कदर जालिम जादूगर? हाँ शहजादे, उस जादूगर ने जादूगर सिपाही की फ़ौज बना रखी है। वो फ़ौज अचानक कहीं भी जाकर इंसानी बस्ती और काफ़िले पर हमला करती है और इंसानों को मारकर उसका माल असबाब लूट कर ले जाती है। ख़ास तौर पर चाकोस जादूगर की सिपाही नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियों को पकड़कर ले जाती है। जादूगर इन लड़कियों को जादूगर पिंजरे में कैद कर देता है और हर रोज़ एक लड़की को हलाक कर कर उसका दिल निकाल कर खा जाता है, ताकि वो दुनिया का बहुत बड़ा और ताकतवर जादूगर बन जाए। इस जादूगर को इन दिनों एक ऐसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिसकी आंखें नीली हो, सर के बाल सुनहरी, उसके नाक पर भूरे रंग का तिल हो। जादूगर की उसके जादुई ताकतों ने बताया था, अगर ऐसी किसी लड़की की तलाश करके उससे शादी कर ले तो उससे जादूगरों के दुनिया में बहुत बड़ा दर्जा मिल जाएगा, वो सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। जादूगर के सिपाही हर जगह जाकर ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे। फिर उन्हें मालूम हुआ कि मुल्तान की शहजादी की खालाजाद बहन वो लड़की है जिसकी वो तलाश में दुनिया छान रहे थे। उस लड़की का नाम गुलरुख है, जो वाकई बेहद हसीन है। जादूगर को जब ये मालूम हुआ कि उसकी मतलूबा लड़की मुल्तान में मौजूद है, तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाकर उस लड़की को उठा लाएं। गुलरुख जिस महल में रहती थी, इस महल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का मज़ार है। इस बुजुर्ग के मज़ार की वजह से जादूगर, उसके सिपाही इस महल में दाखिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने महल में दाखिल होने और महल से गुलरुख को बाहर लाने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह अपने मकसद में कामयाब न हो सके। अपने महल से बहुत कम बाहर आती थी। जादूगर के सिपाही
اس के इंतज़ार में थे कि वो किस तरह से बाहर आए, उसे उठाकर ले जाए। महल में मौजूद नेक बुजुर्ग के मज़ार के मुताबिक वो इर्द गिर्द के करीब भी नहीं रह सकते थे, इसलिए वो इन पहाड़ों की तरफ आ गए। उन्होंने यहाँ मौजूद सरहदी मुहाफिज को हलाक किया और उन्हें जलाकर राख बना दिया, खुद उनकी जगह संभाल ली। फिर उन्हें इत्तला मिली कि गुलरुख अपने माँ के साथ मुल्क सितान आ रही है। वो गुलरुख का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही गुलरुख अपनी माँ और मुहाफिजों के साथ यहाँ आई, उन्होंने एकदम उन पर हमला कर दिया, काफ़िले वालों को हलाक किया, माल असबाब लूट लिया और गुलरुख को उठाकर ले गए। तितली परी ने शहजादे को बताया और खामोश हो गई। इन जादूगर सिपाही ने हमारे मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया। कहाँ है वो बदबख्त जादूगर और उसके सिपाही? मैं इनसे किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उस जालिम और बेरहम जादूगर का ज़िंदा रहना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मैं इस ख़तरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तितली परी, तुम पुरसरार इल्म की मालिक हो, मुझे बताओ जादूगर कहाँ रहता है और उसके जादूगर सिपाही गुलरुख को कहाँ ले गए? मैंने गुलरुख की माँ से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को जल्द और जिंदा सलामत वापस लौटाऊंगा। मुझे अपना वादा पूरा करना है। तितली परी बोली, जादूगर बहुत ताकतवर और खौफनाक है। गुलरुख को उसके कैद से इस जादूगर को हलाक करने के बाद ही आज़ाद करा सकते हो, और इस जादूगर को हलाक करना निहायत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। नामुमकिन तो वाकई नहीं है। मगर क्या? शहजादे ने पूछा। उस जादूगर को हलाक करने के लिए तुम्हें उसकी सुनहरी वादी में जाना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारे पास शामलोस जिनकी तलवार और उड़ने वाले काले जूते नहीं होंगे, ना तो तुम सुनहरी वादी में जा सकते हो और ना जाको जादूगर को हलाक कर सकोगे। चामलोस जिनकी तलवार और काले जूते? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ शहजादे, चाकोस जादूगर चामलोस जिनकी तलवार से ही हलाक किया जा सकता है। वो चूँकि यहाँ से हज़ारों मील दूर एक सुनहरी वादी में रहता है, और वहाँ जाने के लिए तुम्हें उड़ने वाले काले जूते की ज़रूरत होगी, जो तुम्हें उड़ाकर उस सुनहरी वादी में ले जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगे? शहजादे ने परी से पूछा। चामलोस जिन यहाँ से शिमाल मशरिक की तरफ सुर्ख जंगल में रहता है, उस जंगल में मैं तुम्हें पहुँचा दूँगी, मगर तुम्हें वहाँ जाकर चामलोस जिन से मुकाबला करना पड़ेगा। उसके पास एक लंबी और बड़ी तलवार है। उस तलवार को तुम इस जिन को हलाक करके ही हासिल कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें एक जादुई जजीरे में ले जाऊंगी। उस जंजीरे पर अंधी जादूगरनी रहती है। अंधी जादूगरनी के पास वो काले जूते हैं। अंधी जादूगरनी तुमसे 3 सवाल करेगी। अगर तुमने उसके 3 सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आंखें ठीक हो जाने की खुशी में तुम उससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। तुम उससे उसके जादुई उड़ने वाले काले जूते मांग लेना। उन जूतों को जब तुम अपने पैरों में पहनोगे तो तुम्हारा जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा, और तुम उन्हें जहाँ जाने का हुक्म दोगे वो तुम्हें फ़ौरन वहाँ लाकर पहुँचा देंगे। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मसला है। कैसा मसला शहजादे? जिन और जादूगर का तो मैं मुकाबला कर लूँगा, लेकिन अगर चाको जादूगर ने मुझ पर जादुई हमला किया तो मैं उससे कैसे बचूँगा? वो तो मुझे फूंक मारकर एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी शहजादे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम पर किसी जादू का असर नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर वाकई मुझे कोई परेशानी नहीं। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें सुर्ख जंगल में पहुंचा दूं। जिन देखने में इंतहाई ताकतवर और लईम शईम है, वो तुमसे तलवारबाजी करेगा। मुझे मालूम है तुम तलवार चलाने में बेपनाह महारत रखते हो, इसलिए वो ज़्यादा देर तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेगा। तुम कोशिश करके उसके दोनों टांगें काट देना। वो जैसे ही गिरेगा तुम उसकी गर्दन उड़ा देना। तुम अपने घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हारे आगे आगे उड़ती हूँ। तुम मेरे पीछे आ जाना। तुम जैसे मेरे साथ सफ़र करोगे तुम्हारे इर्द गिर्द जल्द रोशनी फैल जाएगी। तुम्हें इर्द गिर्द का माहौल दिखाई नहीं देगा। तुम घबरा मत जाना और मेरे पीछे सफ़र करते रहना। मैं तुम्हें एक तिलस्मी रास्ते से गुजारकर सुर्ख जंगल में ले जाऊंगी। अगर तुमने आम रास्ते से सफ़र किया तो तुम्हें वहां तक पहुंचते पहुंचते कई माह लग जाएंगे। शहजादा बोला, चलो, मैं इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर शहजादा नौफिल ने घोड़े को ईड़ लगाई और उस पर सवार हो गया। तितली परी उड़ते हुए शहजादे के करीब आई और इसने शहजादे और इसके घोड़े के गिर्द 3 चक्कर लगाई। शहजादे के गिर्द नन्हे नन्हे सितारे जगमगाने लगे, यहाँ तक कि उसका घोड़ा इन सितारों में छुप गया। फिर तेज़ सी रोशनी चमकी और सितारे गायब हो गए।
अब शहजादा को यूं लगने लगा कि जैसे इसके इर्द गिर्द जर्द रंग का गुब्बार फैल गया हो। उस गुब्बारे में नन्हे नन्हे सितारे जगमगा रहे थे जो शहजादा और इसके घोड़े के इर्द गिर्द नाच रहे थे। इन सितारों की हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। उसे अपने घोड़े और अपनी नज़रों के सामने तितली परी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और शहजादे मेरे पीछे आओ। उसे देखकर उसने शहजादे ने अपना घोड़ा इसके पीछे लगा दिया। तितली परी की उड़ने की रफ्तार बेहद तेज थी। ये देखकर शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा भी तेजी से भागने लगा। शहजादा नहीं जानता था कि वो किन रास्तों पर घोड़ा दौड़ा रहा है और तितली परी उसे कहाँ ले जा रही थी। इसी तरह मुसलसल सफ़र करते हुए आखिरकार तितली परी की रफ्तार कम हुई और वो पर मारते हुए मुड़कर शहजादे को देखने लगी। शहजादे, घोड़ा रोक लो। क्या हम पहुंच गए? शहजादे, हम सुर्ख जंगल में हैं। तो फिर इस सर्द गुब्बार को ख़त्म करो ताकि मैं चामलोज जिन को तलाश करके उसे हलाक करके उसकी तलवार हासिल कर सकूं। चामलोज जिन मेरे नज़रों के सामने है। तितली परी ने कहा। अच्छा, कहाँ है वो? शहजादे ने हैरत से पूछा। मैं सर्द गुब्बार को हटाऊंगी तो वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस गुब्बार को ख़त्म करूं तुम्हें में रख लो, तितली परी ने कहा। और फिर उसने फिज़ा में हाथ मारा तो उसके हाथ में सुनहरे रंग का एक मोती आ गया। मोती मटर के दाने के जितना था। ये लो, इसे मुंह में रख लो। इस सुनहरे मोती को मुंह में रखने में तुम्हारे जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी। तुम आसानी से चामलोज जिन का मुकाबला कर सकोगे। शहजादे ने परी से वो मोती ले लिया। इसने मोती मुंह में रखा तो अचानक उसे एक हल्का सा झटका लगा। जर्द धुएं का गुब्बार गायब हुआ तो शहजादे ने देखा वो जंगल के एक बस्ती हिस्से में मौजूद था। उसके सामने ज़मीन का एक बहुत बड़ा कित्ता दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ सुर्ख रंग के दरख्त थे। शायद इसी रंगत की वजह से इस जंगल को सुर्ख जंगल कहा जाता था। शहजादा नवाफिल घोड़े से नीचे उतरा। कहाँ है चामलोज जिन? शहजादे ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि वहाँ उसे कोई जिन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ। कड़ाके की आवाज़ सुनकर शहजादा उछलकर कई कदम पीछे हट गया। उसने फ़ौरन मायान से तलवार खींच ली। उसके सामने बिजली की लहर से चमकी और अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा ताकतवर और खौफनाक जिन नमूदार हो गया। उस जिन का रंग स्याह था, जिनकी आंखें सुर्ख थी। उसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी। इस खौफनाक जिन को देखकर शहजादा एक लम्हे के लिए बौखला गया। इसने पहले कभी इतना बड़ा और खौफनाक जिन नहीं देखा था। तुम आदमजाद हो? जिन ने शहजादे को घूरते हुए पूछा। हाँ, मैं आदमजाद हूँ। मेरा नाम शहजादा नवाफिल है। शहजादा नवाफिल ने खुद को संभालते हुए कहा। क्यों आए हो यहाँ और क्या चाहते हो? जिन ने गरजते हुए पूछा। मैं तुम्हें हलाक करने आया हूँ। तुम्हें हलाक करके मैं तुम्हारी तलवार हासिल करना चाहता हूँ, जिससे जाको जादूगर को हलाक किया जा सकता है। शहजादे ने बेखौफ होकर जिन से कहा। क्या तुम मुझे हलाक कर लोगे? एक मामूली आदमजाद चामलोज जिन को हलाक करेगा? बहुत खूब, जिन ने तंजिया लहजे में कहकहा लगाते हुए कहा। मैं शहजादा नवाफिल तुम्हें हलाक ज़रूर करूँगा। शहजादे ने सीना ठोक कर कहा। तो फिर आओ, देखता हूँ तुम में कितना दम है। चामलोज जिन ने गोरा कर कहा। उसने तलवार हाथों से पकड़ ली और कदम बढ़ाकर शहजादा के करीब आ गया। फिर अचानक इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और तलवार उठाकर पूरी कोशिश के साथ शहजादे को मार दी। शहजादे ने इसकी तलवार अपनी तलवार पर रोक ली और ज़ोरदार धक्का देकर उसे पीछे ढकेल दिया। तितली परी का दिया हुआ सुनहरी मोती इसके मुंह में था, इसलिए शहजादा जैसे ही चामलोज जिन को धक्का दिया वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। शहजादे की ताकत देखकर चामलोज जिन की आंखों में बेपनाह हैरत उभर आई। जिन बोला, तुम तो बेहद ताकतवर हो। ये कहकर वो फिर उछला। तलवार को दाएं बाएं लहराते हुए एक बार फिर शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने उसकी तलवार का वार रोककर जवाबी हमला किया। चामलोज जिन तलवार में बेपनाह माहिर था। वो पैसे बदल बदल कर शहजादे पर हमला कर रहा था। शहजादा भी अपने फन में यकता था। वो दाएं बाएं छलांगे मारता हुआ खुद को ना सिर्फ जिन के हमलों से बचा रहा था, बल्कि मौका मिलता ही वो तलवार वो जिन के पैरों पे मारने की कोशिश कर रहा था। मगर चामलोज जिन भी उसके हमलों से खुद को बचा रहा था। इन दोनों के दरबार इंतहाई खौफनाक और खूनी जंग छिड़ गई थी। माहौल तलवारों की तेज झनकार और चामलोज जिन की खौफनाक गुर्राटों से गूंज रहा था। अपने हमलों को नाकाम होता देखकर जिन का गुस्सा बेहद बढ़ता जा रहा था।
اس کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شہزادے نے بھی اس پر جواباً حملہ تیز کر دیا۔ اچانک جن نے شہزادے کو چکمہ دیتے ہوئے تلوار اس کی گردن پر مار دی۔ شہزادہ فوراً نیچے جھک گیا اور جن کی تلوار عین اس کے اوپر سے گزر گئی۔ جن نے پوری قوت سے تلوار گھمائی تھی، اس لیے تلوار کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی دوسری طرف گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، شہزادہ اچھل کر اس کی بڑی بڑی ٹانگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے تلوار جن کے ٹانگوں پر عین گھٹنے پر دے ماری۔ تلوار لگتے ہی جن کی ٹانگ کٹ گئی۔ جن کے حلق سے ایک درد کی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادہ اچھلا اور اس نے اچھلتے ہوئے تلوار جن کے دوسرے ٹانگ میں مار دی۔ جن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے اور اس نے اچھلتے ہوئے ایک تلوار جن کی دوسری ٹانگ پر مار دی۔ جن کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے سارا جنگل تھرتھرا اٹھا۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپنے لگا، جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا چکی۔ جلدی کرو شہزادے، اس جن کی گردن اڑا دو، تتلی پری نے چیختے ہوئے شہزادے سے کہا، جو فضا میں کافی دیر ایک انسان اور ایک طاقتور کے جن کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ تتلی پری کی بات سن کر شہزادے کو جیسے جوش آ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور پھر دوڑتا ہوا جن کے قریب آ گیا اور پلٹتے ہی جن کی تلوار پر دے ماری۔ اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور لڑکتا چلا گیا۔ جن کا بے سر کا جسم زور سے تڑپا اور پھر ثابت ہوتا چلا گیا۔ بہت خوب شہزادے، بہت خوب، تم نے اس جن کو ہلاک کر کے واقعی ثابت کر دیا تم ایک بہادر انسان ہو۔ جن سے طویل اور خوفناک جنگ کر کر وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی تلوار ایک طرف پھینکی اور آگے بڑھ کر جن کی تلوار اٹھا لی۔ چاملو جن کی تلوار بے حد وزنی تھی اور شہزادے نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اب چلو، میں تمہیں اندھی جادوگرنی کے پاس لے چلوں، تتلی پری نے شہزادے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ تتلی پری نے ایک بار پھر شہزادہ اور اس کے گھوڑے کے گرد چکر لگائے۔ اس بار شہزادے کے ارد گرد زرد کے بجائے سرخ رنگ کے غبار پھیل گیا۔ تتلی پری اڑی اور شہزادہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد جب شہزادے نے گھوڑا روکا اور اس کے گرد چھایا ہوا دھوئیں کا غبار چھٹا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے جزیرے میں پایا۔ جزیرہ سنسار اور ویران تھا۔ وہاں درخت اور پودے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر طرف زمین پر بڑے بڑے چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی شکل والی بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، کیا یہ ہے اندھی جادوگرنی؟ تتلی پری بولی، ہاں یہی ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ تم سے 3 سوال کرے گی۔ اگر تم نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد ہی تم اس سے اڑنے والے جوتے حاصل کر سکو گے۔ تتلی پری، اس کے سوال کیا ہیں اور میں ان کے جواب کیا دوں؟ شہزادے نے تتلی پری سے پوچھا۔ وہ عقل کے سوال کرے گی، تم ذہین ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بالکل صحیح جواب دو گے۔ اگر تم نے اندھی جادوگرنی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا پڑے گا۔ پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، مگر ہمت کرو، مجھے یقین ہے کہ تم ناکام نہیں ہوگے۔ تتلی پری نے شہزادے کو حوصلہ دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، شہزادے نے کہا اور گھوڑے سے اتر کر چٹان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چٹانوں پر چڑھ کر وہ اندھی جادوگرنی کے سامنے جا پہنچا۔ کون ہے یہاں؟ اندھی جادوگرنی نے اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ادھر ادھر سر گھماتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ ہوں، شہزادہ نوافل۔ کون شہزادہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اندھی جادوگرنی نے تیز لہجے میں کہا۔ تو شہزادہ نوافل نے اسے گل رخ اور چاملو جن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس سے خونی جنگ کر کے اس نے تلوار حاصل کی تھی۔ اچھا، تو تم مجھ سے اڑنے والے جوتے حاصل کرنے آئے ہو؟ جادوگرنی نے شہزادے سے کہا۔ انہی جوتوں سے اڑ کر چاکو جادوگر کے سنہری وادی میں جا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اڑنے والے سیاہ جوتے تمہارے پاس ہیں، وہ طلسمی جوتے میرے پاس ہیں شہزادے۔ ان جوتوں سے اڑ کر وہ طلسمی جوتے میرے پاس ہیں شہزادے۔ ان جوتوں سے اڑ کر تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چند لمحوں میں پہنچ سکتے ہو۔ کیا تم وہ جوتے مجھے دے سکتی ہو؟ شہزادے نے کہا۔ ہاں، دے سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں طلسمی جوتے تمہیں بخش دوں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں سوال بتاؤ۔
शहजादे ने जल्दी से कहा। सोच लो शहजादे, अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिए तो तुम्हारा हश्र भी उन इंसानों जैसा होगा जिन्होंने मेरे सवालों के गलत जवाब दिए थे। अच्छा, क्या हुआ था उनका हश्र? शहजादे ने अंधी जादूगरनी से पूछा। ऊपर आओ, इस पहाड़ी की दूसरी तरफ, अपनी आंखों से देख लो, अंधी जादूगरनी ने कहा। तो शहजादा कुछ सोचकर ऊपर आ गया। उसने अंधी जादूगरनी के कहने पर पहाड़ी की दूसरी तरफ देखा तो वो एक लम्हे के लिए कांप कर रह गया। पहाड़ी की दूसरी तरफ एक छोटा सा मैदान था। इस मैदान में उसे बेशुमार इंसानी बुत दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? क्या ये सब जिंदा इंसान थे? हाँ, ये सब जिंदा थे। ये मुझसे दौलत हासिल करना चाहते थे। मैंने एक जादुई ताकत को इंसानी रूप में जगह जगह भेज रखा है, जो मेरे तरफ हर तरफ ये अमलाम करती है कि अगर कोई जजीरे पर आकर मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा तो मैं उसे इनाम में बेशुमार हीरे ज़ेवरात दूंगी। यहाँ आने वाले सब इंसान दौलत के लालची थे जो मेरे सवालों के जवाब न दे सके, तो मैंने इसे पत्थर के बुतों में तब्दील कर दिया। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ दौलत के लालच में नहीं बल्कि एक नेक काम के लिए मुझसे उड़ने के लिए जूते लेने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें भी वो जूते उसी शर्त पे दूंगी जब तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगे। अगर मैंने तुम्हें सही जवाब दे दिया, क्या तुम मुझे उड़ने वाले काले जूते के साथ तुम मेरी एक और बात मान सकोगी? वो कौन सी बात? अंधी जादूगरी ने शहजादे से पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब इंसानों को दोबारा उनके असली हालत में लाकर उन्हें वापस उनके मुल्कों में भेज दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शहजादे ने कहा। तो अंधी जादूगरनी बेख्तियार हंस पड़ी। तुम बहादुर होने के साथ साथ रहम दिल भी हो शहजादे। अगर तुमने मेरे तीनों सवालों के ठीक जवाब दे दिए तो मैं उड़ने वाले काले जूते तुम्हें दे दूंगी और इन तमाम इंसानों को भी बुतों से दोबारा इंसान बनाकर इन्हें बहुत सारे इनाम देकर इन्हें इनके मुल्कों में वापस भेज दूंगी। शहजादे ने तितली पतली परी की तरफ देखा जो अंधी जादूगरनी से कुछ फासले पर फिजा में पर हिला रही थी। इसकी होंठों पर शहजादा नौफिल के रहमदिली देखकर मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में पहले अंडा आया था या मुर्गी? अंधी जादूगरनी ने अपना पहला सवाल करते हुए पूछा। हम आदमसानी यानी हज़रत नूह की औलाद हैं। जब तूफ़ानी नूह आया था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की थी और इंसानों के साथ साथ उस कश्ती में तमाम जानवरों के जोड़े भी साथ रख लिए। इसलिए पहले मुर्गी इस दुनिया में मौजूद थी। शहजादा ने इस सादा से और आसान सवाल का जवाब बगैर किसी परेशानी के देते हुए कहा। मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया शहजादे। वाकई दुनिया में पहले मुर्गी आई थी। तुम बेहद ज़हीन हो। एक ऊंची दीवार के एक तरफ रेत ही रेत है और दूसरी तरफ दरिया। दीवार पर कौवा बैठकर अंडा देगा तो वो कहाँ गिरेगा, रेत पर या दरिया में? अंधी जादूगरनी ने कहा। तो उसका सवाल सुनकर शहजादा मुस्कुराने लगा। बड़ा आसान सा जवाब है, कौवा अंडा नहीं देता, शहजादा ने कहा। तो अंधी जादूगरनी एक बार फिर उछल पड़ी। बहुत खूब शहजादे। अब तीसरा और आखिरी सवाल सुनो। दुनिया की ज़मीन पर कितने हिस्से पानी है और कितने हिस्से पर खुश्की है? अंधी जादूगरी ने खुशी से लरजते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर शहजादे ने सुकून का सांस लिया, जैसे वो डर रहा हो कि अंधी जादूगरनी कहीं ऐसा सवाल न कर दे जिसका जवाब इस देने में से मुश्किल हो और ऐसी सूरत में वो वहाँ पर पत्थर का बनकर रह जाए। मगर अंधी जादूगरनी ने उसे बेहद आसान सवाल किए थे। जोग्राफियाई तौर पर दुनिया को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें से 7 हिस्सों पर पानी यानी समुंदर है और 3 हिस्सों पर खुश्की, शहजादे ने कहा। तो अंधी जादूगरनी ने खुशी से के मारे उछल पड़ी। अचानक इसकी आंखों में तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखों की सफेदी में स्याह फुटने नजर आने लगी। मैं ठीक हो गई। अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने मेरे सवालों के सही जवाब देकर मुझे मेरी बिनाई लौटा दी है। ज़हीन शहजादे, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अच्छा हुआ। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? शहजादे ने पूछा। मेरा नाम बाटली है, आंधी जादूगर ने कहा। क्या अब तुम मुझे उड़ने वाले जूते दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। इसने दोनों हाथ दाएं बाएं लहराकर शहजादे के पैरों की तरफ झटके तो एक झमाका सा हुआ और शहजादे के पैरों से उसकी जूतियाँ गायब हो गई और उनके जगह खुद ब खुद उसके पैरों में सियाह जूते आ गए। इन जूतों के दोनों तरफ नन्हे नन्हे मगर रंगदार पर लगे हुए थे।
لو شہزادے، میں نے تمہیں طلسمی جوتے دے دیے ہیں، اب تم ان کے مدد سے کہیں بھی آسانی سے جا سکتے ہو۔ یہ جوتے تمہیں چند ہی لمحے میں چاقو اور جادوگر کی دنیا میں پہنچا دیں گے۔ باخلی جادوگر نے شہزادے سے کہا، میں تمہاری شکریہ ادا کرتا ہوں جادوگرنی، تم نے مجھے طلسمی جوتے دے کر میری بہت بڑی پریشانی دور۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے شہزادے، تمہاری وجہ سے آج مجھے بینائی مل گئی، جو ایک بزرگ کی بد دعا کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی انسان خود یہاں آ کر میرے تینوں سوالوں کا صحیح جواب نہ دے گا، میں اس وقت تک اندھی رہوں گی۔ آج تم 100 سال کے انتظار کے بعد آئے ہو، اب میں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری آنکھیں مل گئی اور مجھے طلسمی جوتے، اس لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری آنکھیں مل گئی اور مجھے طلسمی جوتے، اب میں چاقو جادوگر کے سنہری وادی میں جا رہا ہوں۔ سنو شہزادے، میں تمہیں چاقو جادوگر کی سنہری وادی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سنہری وادی میں تمہیں ایک انسان کا بہت بڑا بت نظر آئے گا، وہ بت چاقو جادوگر کا ہے، اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر تم ڈرنا نہیں۔ چاقو جادوگر کے بت کے ہاتھ میں ایک تکونا سا پنجرا ہے، اس پنجرے میں تمہیں ایک سرخ لباس والی جادوئی لڑکی بن نظر آئے گی، تم چاملوس جن کے تلوار مار کر اس پنجرے کو توڑ دینا۔ پنجرے میں قید سرخ لباس والی جادوئی لڑکی کو فوراً ہلاک کر دینا۔ جیسے ہی سرخ لباس والی لڑکی کو ہلاک کرو گے، تمہارے سامنے چاقو جادوگر کا جادوئی سپاہی آ جائیں گے، تمہیں ان سب کو ہلاک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی چاقو جادوگر کے سپاہی ہلاک ہوں گے، جادوگر کا بت زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ تم پہ جادوئی وار کرے گا، لیکن میری جوتوں کی وجہ سے تم پر اس کا کوئی جادوئی اثر نہیں کرے گا۔ اپنے جادو ناکام ہوتے دیکھ کر جادوگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر تمہیں فوراً اسے ہلاک کرنا ہوگا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا تو تم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ جادوگرنی نے تفصیل میں بتاتے ہوئے کہا، اچھا، یہ بتا کر تم نے مجھ پر ایک اور احسان کر دیا۔ شہزادے نے باخلی جادوگر کا شکریہ اور پھر شہزادے نے اس سے اور تتلی شہزادے سے اجازت لی اور طلسمی جوتے سے کہا کہ وہ اسے چاقو جادوگر کی سنہری وادی میں پہنچا دے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ جوتوں پر لگے ہوئے پر حرکت میں آ گئے اور شہزادہ نافلہ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، چونکہ ہر طرف گپت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے شہزادے کو کچھ دکھائی نہ دیا کہ وہ کتنی بلندی پر ہے اور جوتے اسے کس طرف لیے جا رہے تھے۔ وہ کہاں دیر تک اڑتا پھر رہا تھا۔ شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ نیچے اترتا جا رہا ہو۔ چند لمحے میں اس کے قدم زمین پر آ لگے۔ جیسے اس کے قدم زمین پر لگے، ایک تیز روشنی چمکی اور شہزادے کی ارد گرد ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ وہ سنہرے رنگ کی عجیب و غریب وادی میں کھڑا تھا۔ شہزادے کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ بت جادوگر کا تھا۔ اس بت کا ہاتھ آگے بڑھا تھا، جس میں ایک بڑا اور تکونا سا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پنجرے میں سرخ لباس پہنے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی، وہ پنجرے میں گھٹنوں کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس سے پہلے وہ شہزادے سے کچھ بات کرتی، شہزادے نے تلواروں کو دونوں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جسم کو گھما کر تلوار پوری قوت سے اس پنجرے پر دے ماری۔ ایک زور کڑاکا ہوا اور چاقو جادوگر کے بت کے ہاتھ سے پنجرا غائب ہو گیا اور پنجرے میں موجود سرخ لباس والی لڑکی ایک زوردار دھماکے سے نیچے آ گری۔ رک جاؤ شہزادے، مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، سرخ لباس والی لڑکی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر شہزادہ سفیان کو باخلی جادوگر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شہزادے نے لڑکی کوئی بات نہ سنی اور آگے بڑھ کر تلوار کا بھرپور وار کر کے جادوئی لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی لڑکی کا سر کٹا، ایک زور کڑاکا ہوا اور لڑکی کا سر اور جسم ایک دم جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ پھر اچانک شہزادے کو تیز شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سرخ قمیضوں اور سرخ سوالوں والے بے شمار سپاہی چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتے ہی دکھائی دی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ وہی جادوئی سپاہی ہیں جنہوں نے اس کے ملک کی سرحد پر موجود سپاہی کو ہلاک کیا اور وہ بزرگ خاتون کی بیٹی گلرخ کو اڑا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
शहजादा भागकर इन सिपाहियों की तरफ बढ़ गया। जादुई सिपाही बुरी तरह चीखते हुए उस पर बढ़ पड़े। शहजादा उछलकर उनके मुकाबले पर आ गया। इसने जो तलवार एक जादुई सिपाही को मारी और सिपाही एकदम जलकर राख का ढेर बनता चला गया। ये देखकर शहजादे का हौसला बढ़ गया। इसने पूरी कुव्वत से इन जादुई सिपाही पर हमला शुरू कर दिए। वो उछल उछलकर खुद को इन सिपाही की तलवार से बचाते हुए उन पर हमले कर रहा था। उसकी तलवार जिस सिपाही को लगती वो फौरन जलकर राख हो जाता। जादुई सिपाही काफ़ी देर तक शहजादे से लड़ते रहे। आखिरकार शहजादा इन सबको फना कर दिया। इन सिपाहियों के हलाक होते ही चाकोर जादूगर के बुत पर बिजली सी चमकी और अचानक एक इंसान के रूप में वो शहजादे के सामने आ गया। तुमने मेरी जादुई ताकत को फना करके अपनी मौत को दावत दी है शहजादे, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चाकोर जादूगर ने गोसीले लहजे में कहा। इसने हाथ झटककर शहजादे पर आग बरसाई, मगर आग शहजादे के करीब आते ही बुझ गई। अपना वार खाली जाते देखकर चाकोर जादूगर हैरान रह गया। इसने मंत्र पढ़कर शहजादे पर फूके, मगर चूंकि उसके पाँव में बागली जादूगरनी के काले जूते थे, इसलिए शहजादे पर इसलिए इस शहजादे पर उसके किसी जादू का असर नहीं हुआ। अब चाकोर जादूगर सचमुच बौखला गया। इसने पलटकर भागने की कोशिश की। ये देखकर शहजादा बिजली की तेजी से उस पर झपटा। इसने तलवार मारकर चाकोर जादूगर के 2 टुकड़े कर दिए। चाकोर जादूगर हलाक हुआ तो अचानक वहाँ अंधेरा छा गया। हर तरफ रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। मेरा नाम चाकोर जादूगर था, मुझे शहजादा ने मार दिया, मुझे शहजादा नौफिल ने मार दिया। मेरा नाम चाकोर जादूगर था, मुझे शहजादा नौफिल ने मार दिया। चाकोर जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ के ख़त्म होते ही वहाँ एक बार फिर रोशनी फैल गई। अब वहाँ सुनहरी चट्टानें और सुनहरी रोशनी नहीं थी, बल्कि वो एक शहरा में खड़ा था। इसके करीब एक निहायत हसीन लड़की मौजूद थी। शहजादा समझ गया कि वो लड़की मुल्क तरान की मलिका की बेटी गुलरुख है। शहजादा समझ गया कि वो लड़की मुल्क तरान की मलिका की बेटी गुलरुख है। इसने गुलरुख को अपना तारुफ कराया और उसे सारी बात बता दी। गुलरुख ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और इसकी बहादुरी की तारीफ की। शहजादे ने इसका हाथ पकड़ा और काले जूतों की मदद से वो उड़ाता हुआ बागली जादूगरनी के जजीरे पर पहुंच गया, जहां बागली जादूगरनी और तितली परी इसका इंतज़ार कर रही थी। बागली जादूगरनी और तितली परी इसे देखकर बहुत खुश हुई। शहजादा ने बागली जादूगरनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसके काले जूते उसे वापस कर दिए और फिर शहजादे ने जादूगरनी को अलविदा कहा और अपने घोड़े पर सवार हो गया। इसने गुलरुख को अपने पीछे बैठा लिया। तितली परी इनके आगे आगे उड़ने लगी। वो इस तिलस्मी रास्ते से होते हुए मुल्क सितान पहुंच गए। बादशाह सलामत अपने बेटे और उसके साथ गुलरुख को देखकर बेहद खुश हुए। बुजुर्ग खातून को जब अपनी बेटी की वापसी की खबर मिली तो वो फ़ौरन वहां आ गई। इसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। शहजादा नौफिल और बादशाह का शुक्रिया अदा करने लगी। गुलरुख बेहद खूबसूरत थी। शहजादा नौफिल के कहने पर बादशाह सलामत ने गुलरुख बेहद खूबसूरत थी। शहजादा नौफिल के कहने पर बादशाह सलामत ने बुजुर्ग खातून से गुलरुख का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा तो उसने इनकार नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद शहजादा नौफिल और गुलरुख की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तितली परी को वादी के मुताबिक शहजादा नौफिल ने अपने मुल्क के फूलों के बागात दिखाए, जहाँ रंग बिरंगी फूल देखकर तितली परी बहुत खुश हुई। वो अक्सर शहजादा नौफिल और गुलरुख से मिलने आ जाया करती थी और सारा दिन तितलियों की तरह फूलों के बागों में उड़ती रहती थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस स्टोरी को लाइक कर लें और आगे स्टोरी देखने के लिए देखते रहें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।